الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم. درود پڑھیے گا. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آخری عشرہ ہے، اور یہ بھی تقریباً دامن سمیٹنے کو ہے. اور آج کی شب بڑی خاص شب ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں جہاں کسی کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. میرے کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا. حضور کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا. میں آپ لوگوں کے سامنے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر بیان کروں گا، دھیان سے سنیے گا. حاضرین مجلس، یہ عادت باری تعالیٰ ہے. اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر اللہ آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے. یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں آگ، سونا پرکھیا جاندائے نال اگاں دے لگ. جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر اللہ آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے. آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر. اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی. 40,000 بکریوں کا ریوڑ، 40 باغ، 400 غلام، اور اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا فرمائے. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. تو آپ فرما دے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں. کہا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا. سنیے گا، آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر حواری ہیں اور ان سے محو کلام ہے. اچانک یہ غلام دوڑا آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا. 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی. آپ نے صبر کیا. ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، سانس پھولا ہوا ہے. غضب ہو گیا. 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا. آپ نے اس پر بھی صبر کیا. اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد؟ نہ میرے بھائی، ایک وقت میں سارے امتحان. تیسرا آیا اور اس نے جو آ کے خبر دی وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے. کہا غضب ہو گیا. آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار. اولاد اسائی پھری ہوتی ہے دوست، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے. آپ نے اس پر بھی صبر کیا. امتحان ختم نہیں ہوا. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے. شہر والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا. جب زخم زمات تک آئے نا تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی. شکوہ ہم کرتے زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے یا اللہ سارے دکھ ساڑھے غریبہ واسطے. لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا دوست، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں. اس کو سادہ کرتے بالکل.
नगमा सुनिएगा। अर्ज की मालिक 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, मैं ना बोला। 40 बाग हवा का तेज झोंका उड़ा के ले गया, ऐ अल्लाह मैं ना बोला। मेरे चांद जैसे 12 बेटे शहीद हो गए, ऐ अल्लाह मैं ना बोला। मुझे शहर वालों ने शहर से निकाल दिया, उनकी बेवफाई का तस्करा किया, ऐ अल्लाह मैं ना बोला। और अर्ज करते मालिक देख तेरे बंदा अयूब के जिस्म में जख्म आए, मेरे जिस्म से बोटियां टूट के जमीन पे गिरी, ऐ अल्लाह मैं फिर भी नहीं बोला। लेकिन मालिक मेरी तुझसे एक दरखास्त है कि मेरी जुबान महफूज रखना। वो इसलिए कि ये जुबान तेरा नाम लेती है, ये जुबान तेरे तस्करे करती है। उठदी बहदी आवाज कम भी रखे ना। उठदी बहदी टुरदी फिरदी सुत्तियां ते जागदी, नाम जपदी रो ते खपदी वेह सुर इस राग दी। नाम जपिया कुर्ब मिलदा नाम दी कर पूरी सांप, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर जरूरत काग दी। जिन्हें अल्लाह इज्जतें देता है ना दोस्त, अल्लाह उसे आजमाता भी है। मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया, हुजूर का फख्र के हुजूर ने सर की आंखों से रब का दीदार किया। तो जिंदगी में इम्तिहान कितने आए सुनिएगा। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, शिक में मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद गिरामी का साया उठा लिया गया। ये उस वक़्त हुआ जब हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु तजारत की गरज के से जो है वो शादी के कुछ अरसा बाद मुल्क शाम गए और वहाँ से वापस अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था, आप आए और बीमार हो गए। काफिला चंद दिन ठहर गया कि आपकी तबीयत बहाल हो तो हम साथ ले चले, लेकिन तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। मजबूरन काफिला मक्का लौट गया। अल्लाह अकबर। और चंद दिन बाद हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया और ये खबर मक्कातुल मुकर्रमा में अब्दुल मुत्तलिब के खानदान पर बिजली की तरह गिरी। सैयद आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे भाई, उन्होंने तो अभी अपने माह तमाम को जी भर के देखा भी नहीं था और उनका जी चाहता था कि मैं उड़ के यसरब चली जाऊं, मट्टी के उस तोदे को देखूं और उसकी खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं। लेकिन जिस अमानत का आपको अमीन बनाना था, उसकी हिफाजत के जुमा ने हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा को रोक लिया। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, शिक में मादर में है कि आपके सर से आपके बाप का साया उठा लिया गया। आप दुर्रे यतीम पैदा हुए। मेरे नबी की उम्र 6 साल हुई, चलने फिरने के काबिल हुए, सफर की सोबत सहने के लायक हुए तो सैयदा अपने मन की बात अपने ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कह डालती हैं कि 6 साल जुदाइयों में गुजार दिए, अगर आप रुखसत अनायत करो तो मेरी आरजू है कि उस खाक को आंखों का सुरमा बना लूं। तो आपने अपनी 14 साला बहू सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा को रुखसत दी और साथ एक खादिमा उम्मे ऐमन रदी अल्लाह तआला अन्हा को भेज दिया। ये नफूस कुदसिया मक्का से यसरब आए। 1 महीना, कम करें आवाज थोड़ी सी, 1 महीना या कुछ दिन ज्यादा वहां ठहरे और फिर वहां से वापस लौट आए। उसकी वजह यह थी कि जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता तो बरमला कहता कि ये तो इस उम्मत का नबी है। लोगों का जमगट्ठा हुआ। सैयदा फरमाती, मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़ब न पहुंचाए। इस खौफ ने सैयदा को वापस पलटने पे मजबूर कर दिया। आधा सफर तय हो गया, आधा सफर अभी बाकी था। रास्ते में एक अबवा नामी बस्ती आई जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा आके रुक जाती हैं। बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गए कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मसूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर और माँ बेटे में खुब सी गई। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती, बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया, बेटा मैं भी जा रही हूं लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। मेरे नबी माँ से लिपट के रोए। नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा के मज़ार पे जब पहली दफ़ा हाजिर हुआ, सहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल बिल्कुल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त थे, हम जब वहाँ से पलटने लगे
तो मैंने उनसे कहा यार आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे और पलट पलट के देखा था, मैंने कहा आओ बिछड़ते हैं, आओ पलटते हैं। हम बिछड़े, हमने पलट के देखा तो हुजूर का बचपन और बचपने की तड़पती कहानी याद आई। तो मुकामे बदर तक हमारी हिचकियां और सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती जब मैं हुजूर को पहाड़ से लेकर नीचे आई ना तो पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। आप फरमाती मैं फिर जल्दी से पहाड़ पे चढ़ गई और मैंने क्या देखा कि हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। एक साहबी किसी को आर देते हुए कह रहे थे वो काली माँ के बेटे। हुजूर नाराज हो गए, जलाल में आ गए, 3 दफा तकरार से फरमाया पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। फरमाया किसी गोरी रंगत वाली माँ के बेटे को काली रंगत वाली माँ के बेटे पे कोई फोकियत हासिल नहीं। फरमाया अगर है तो वो तकवा है। और फरमाया मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली और जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। आका फख्र से फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद बैक वक़्त 2 माओं का तनहा बेटा हूँ। 6 साल की उम्र में अबवा के टीले पे माँ खामोश हो गई। फिर कफालत का जुमा आपके मेहरबान दादा जान ने उठा लिया। खाना खाते साथ बैठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जिले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, बेटों को जरूरत नहीं थी वहां बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बतें वसूल हुई। ओ भाई गम की कहानी नहीं टूटी, सैलाब नहीं थमा। 2 साल बाद आपके मेहरबान दादा जान का इंतकाल हो गया। रावी लिखता है कि जब मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा था और पीछे पीछे मेरे रसूल थे और आप अपने दादा की जुदाई में आंसू बहाने लगे। फिर कफालत का जुमा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा से भी बड़ी मोहब्बतें मिली। खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जनाब अबू तालिब कसीरुल अयाल थे और आपकी मईशत ज्यादा मजबूत नहीं थी। मैंने हुजूर का बचपन बढ़ा है। अम्मा हलीमा फरमाती हुजूर को बचपन में अगर भूख लगी भी होती ना तो हुजूर ने कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा भाई, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है। हमें वक्त पे खाना ना मिले हम घर के बर्तन तोड़ देते हैं, गालियां देते हैं, खवातीन पे हाथ उठाते हैं। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार था कि भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। हुजूर परवान चढ़े, जिंदगी में इम्तिहान बड़े आए, आमुल हुस्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफ़ीका हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। हुजूर घर में ही लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। हमने कौम के रवैये बड़े, अब के बार रवैये बदल चुके थे। ला इलाहा की दावत देते लोग कांटे बिछाते हैं, कड़े खोदते हैं, ओझरियां फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने दुख है यार जो मक्का वालों ने नहीं दिए। शैब अबी तालिब में 3 साल मासूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते हैं तो क्या माएं मुंह पे थप्पड़ मारती हैं? नहीं भाई, बस इतना कहती बच्चों तुम्हारे रोने की आवाज अगर काफिरों ने सुनी ना तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नजरों से गुजरा, वो कहते मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी कि एक गीली जगह पांव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया, इन राहों पे चलने वालों को दुखों से 2-4 होना पड़ा। मेरे नबी फरमाते मैं ताइफ चला गया, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूं, उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत कि उसे कबूल नहीं किया। हुजूर फरमाते मेहरबानी करना मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को न देना, वो मुझे ज्यादा तकलीफ देगी। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाने लगे। ताइफ का बाजार है और 2 रोया कितारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया। हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था, कुछ लोग नाराज हो गए। साचाखी थे पामड़ मचदे ने और चमन में तलख नवाई गवारा कर, इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई गवारा कर के जहर भी करता है कभी कारे तरिया की, कड़वी कुसैली
थी। मैंने बरमला बरजस्ता का हुजरों में नहीं, नजराने वसूल करके नहीं, सिर्फ हाथ चुमा के नहीं। ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है, ये दीन तबलीग से आया है। मोहम्मद अरबी इस पैगाम को लेकर ताइफ आए और ताइफ वालों ने पत्थर मारे। अर्ज किया गया हुजूर इनके लिए बद्दुआ कर दे। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूं। और वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। बाज़ का जो नताइज होते हैं ना दोस्त, वो आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। जो मतलूब नताइज हमें होते हैं बाज़ का वो खातिर खार नहीं मिलते। हम कहते हैं मेहनत भी की, वक्त भी दिया, लेकिन यहाँ के बसने वाले, बस्ती के लोग, रहने वाले, शायद कि इनके रवैयों में इतनी तलखियाँ हैं तो हम बाज़ का दिल बर्दाश्त होकर हिजरत कर जाते हैं। हम कहते हैं छोड़ो यार, हमें तो सजदे से गरज है, जो यहाँ नहीं तो वहां सही, काम भी कर लेना, बिहाड़ी में नहीं तो हम आगे कहीं चीचावतनी चले जाएंगे, बूरेवाला चले जाएंगे, मुल्तान चले जाएंगे, मुजफ्फरगढ़ चले जाएंगे, गड़ा मोड़ चले जाएंगे। ये इंसान सोचता है कि यार जिसकी घर नहीं चलती यहां तो सबकी चलती है। हमने इतनी मेहनत की, यहां मेहनत का नतीजा क्या मिला? तो दिल बर्दाश्त होकर बाज़ वक़्त फैसला करते हैं। हुजूर का यह फरमान हमें रोशनी देता है कि नताइज जो होते हैं बाज़ वक़्त आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। आप जानते हो जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अलल हज्जाज कहा। हज्जाज कोई तारीख का काबिल जिक्र इंसान ही, बहुत बड़ा बदमाश है। उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है बहन में हाजिर। और उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद को यहां भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रौंदता हुआ यहां आया और उस बेटी के सर पर इज्जत की रिदा रखी। और फिर वो यहां 4 साल गुजार के गया। उसने मकरान से, आपके पड़ोस में मुल्तान है, मुल्तान तक सफर किया। अपने किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दिया। वो खुद चला गया लेकिन यहां दीन छोड़ गया। उस शख्सियत को जमाना आज मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते। हुजूर ताइफ से मक्का आए, उम्मे हानी का घर है, हुजूर माहवे इस्तराहत है, आंखें बंद है, दिल जाग रहा है। जबरील ने मेराज की शब दिल देखा ना हुजूर का तो अशश कर उठा, वाह वाह कैसा दिल है। 2 आंखें हैं जो देखती हैं, 2 कान हैं जो सुनते हैं। अब आयशा फरमाती हुजूर नमाज इशा पढ़ते फौरन सो जाते हैं और तहज्जुद के वक्त बेदार होते हैं और मुसल्ले पे खड़े हो गए। मैंने एक दिन अर्ज किया हुजूर क्या आपको नए, जिस तरह दूसरे लोग वजू के लिए खड़े होते हैं, क्या आपको नए वजू की जरूरत नहीं होती? तो हुजूर फरमाते आयशा मेरी आंखें सोती हैं लेकिन दिल मोहम्मद का जागता रहता है। तो हुजूर उम्मे हानी के घर में माहवे इस्तराहत, आंखें बंद, दिल जाग रहा है। अल्लाह ताला ने जबरील अलैहिस्सलाम को 70,000 नूरी फरिश्तों के जुर्मट में हुजूर की खिदमत में भेज दिया कि जाओ और मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ। भाईजान जिन्हें अल्लाह इज्जतें देता है अल्लाह उसको आजमाता भी है। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, शिक्म मादर में है कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। 6 साल की उम्र में अब्वा के टीले पे माँ खामोश खड़ी है। 8 साल की उम्र में मक्के के बाजार से आपके मेहरबान बूढ़े दादा जान का जनाजा उठा। आमुल हुस्न आया, मक्के के तलख रवैये, ताइफ के पत्थर, इतने दुखों के बाद आज जबरील पैगाम लेके आए ना, अर्श की मालिक दस्तक दूं, फरमाया नहीं ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। छत पे चढ़ो, छोटा सा सुराख करो और उस सुराख से अंदर दाखिल होना है। जबरील के 600 नूरी पर है, एक पर खोले तो जमीन व आसमान को ढांप ले। आज सिमट के आए, यहां दुनिया वालों को तालीम दी कि जब बड़ों के पास आओ तो बड़ा बन के नहीं छोटा बन के आया करो। जबरील कदमों में खड़े हैं, मालिक क्या हुक्म है? फरमाया या जबरीलू कब्बिल कदमै है। उलमा तशरीफ फरमा है कब्बिल बाबे तफ़ईल से है और ये कसरत माखज को चाहता है। कब्बिल कदमहू वाहिद का सीगा नहीं, कदमै है तस्निया का सीगा है। यहां एक कदम की नहीं 2 कदमों की बात है। तकाजा एक बार का नहीं बार बार का है कि जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ, इन कदमों के बार बार बोसे लो। काफूरी होंठ, ठंडे होंठ मेरे नबी के तलवों से मस हैं। मेरा विजदान कहता है आरजू मछली होगी, अल्लाह भी तेरा नबी बेदार ना हो। मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूं। न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की। अजाला करता चलो, कुछ लोग कहते जबरील उस्ताद है और हुजूर शागिर्द है। मुझे बताइएगा ये एजाज उस्ताद का है कि शागिर्द का? भाई शागिर्द का है। बेटा बाप के पहुंचों में एजाज बेटे का है, मुरीद शेख के पहुंचों में एजाज मुरीद का है। जबरील ने मेराज की शब हुजूर के पहुंचों में एजाज किसका हुआ भाई?
یہ تو جبریل کا اعزاز کہ حضور کے قدموں میں جو ہے وہ قدموں کو چومنے کا موقع ملا. حضور بیدار ہوئے اور پھر جبریل نے رب کا پیغام دیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ گئی یار؟ شک صدر ہوا. حضور براق پہ تشریف فرما ہوئے. سنیے گا، یہاں رکیے گا ذرا. جب حضور براق پہ بیٹھے تو حضور کو امت یاد آ گئی، مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضور نے اس امت سے بڑی محبت فرمائی. آئے رہے، اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو اس وقت بھی لبوں پر اس امت کے نغمے تھے. فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا حضور کے لب حرکت میں تھے. میں نے کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. عذاب کی آیتیں اتری، رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے، باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے. وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے. اب وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے اور کہتا میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں. وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے کہا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی. صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رو کے کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. رکیے گا صاحب صرف 2 لمحوں کے لیے. اگر تخیلات میں غوطہ لگے، میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے. ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیں. محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے. محبت دعویٰ عمل دلیل. ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نعرے جو ہم لگا دیے یہ کھوکھلے ہو گئے. حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا یار، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ انتہائی معذرت سے چوک چوارے آباد کیے، چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آتی جاتی شریف زادیوں کو تنگ کیا، اخلاق کھوکھلے ہوئے، فساد کے کھوکھلے دھانے پہ کھڑے ہوئے. جوان ہے چلے اکڑ اکڑ کے، بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور بنے. 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی. واعظ نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے، ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائیں. لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی. او بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ ایک صورت میں نہیں ہوتا دوست، یہ کبھی قمر کبھی بدر کبھی حلال ہوتا ہے. جوانوں ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے. کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے. جوانوں یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے. اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، کسی کو کوئی خبر نہیں. محبت تو عمل مانگتی ہے. ہم کہاں کھڑے، ہم نے کیا کیا اور ہم کہاں جا رہے ہیں، اور محبت تو عمل چاہتی ہے. صحابہ نے آگے بڑھ کے حضور سے عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزار دیے، چلیے اللہ مہربانی فرمائے گا. فرمایا ابو بکر میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا. جوانوں جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی. راوی لکھتا ہے کہ سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی نا اس پہ 14 پیوند لگے تھے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند ہیں. آپ غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی. عرض کرتے ابو جی بیٹی آئی ہے، ابو جی جگر کا ٹکڑا آیا ہے، دیکھیے نا جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے. تو حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے. حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. فرمائے فاطمہ اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں وعدہ نہیں کر دیتا.
जब हुजूर सजदे से सर नहीं ना उठाते तो फिर सैयदा अपने मालिक से अर्ज करती, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया, मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजिल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए अल्लाह तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बड़ा, कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा क़यामत आ गई। रूमी कहता फिर एक सदा उठी, बस निदा आमद जे यज़दा का रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, कर तलब कर दी ज़मीन व आसमां, जुमलाए बख्शदे मशदर यकसमा। फरमाया जबरील देर ना करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने दुआ को कबूल कर लिया है, जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। और भाई हुजूर ने इस उम्मत से बेपनाह मोहब्बत की, मोहब्बत हमसे तकाजे चाहती है। आइए भाई उन तकाज़ों को पेश नज़र रखें और ज़िंदगी उन राहों पे ले आएँ जिन राहों पे अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की रज़ा बिछी है। हुजूर बुराक में तशरीफ़ फरमाए, चश्मान मुबारक से आंसू निकल आए, उम्मत का प्यार याद आया। हुजूर मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले आए, वहाँ नबियों को इमामत का शरफ मिला। मैं अजमालन तस्करा करके बात आगे बढ़ा रहा हूँ, जिन्हें अल्लाह इज़्ज़तें देता है उन्हें आजमाता भी है। हुजूर फिर बुराक से फिर वो नूरी सीढ़ी, फिर फरिश्तों के परों पर, फिर जिब्रील के परों पर, फिर रफ आया, एक जगह वो आया, वो भी रुक गया। हुजूर फरमाते फिर एक आवाज़ आई, प्यारे अहमद कदम उठाइए। मेरे नबी फरमाते मैंने डरते डरते झिझकते झिझकते एक कदम उठाया। सफ़र कितना तय किया? जितना 5 मराहल में तय किया था। एक कदम उठाता हूँ तो इतना सफ़र तय कर लेता हूँ। आवाज़ एक बार नहीं आई, 2 बार नहीं आई, 10 दफ़ा नहीं आई, 70,000 मरतबा आवाज़ आई। आवाज़ आती गई, कदम उठते गए, कुर्ब ख़ास तक पहुँचे। भाईजान जब कुर्ब ख़ास में पहुँचे तो फिर अल्लाह ने फरमाया महबूब आपको किस चीज़ से मुशर्रफ किया जाए? तो हुजूर ने अर्ज़ किया अल्लाह मेरी आरज़ू है कि तू मुझे अपना बंदा कह के पुकार दे। वहाँ मुकाशफात भी हुए, वहाँ राज़ व नियाज़ की बातें भी हुई, वहाँ उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफ़ा भी मिला। राज की बातें अल्लाह और उसके रसूल के माबैन हुई। उन राज की बातों में एक बात सैयद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए हमारे तक आई। दिल के कानों से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अल्लाह से अमल के जज्बे भी मांगिएगा। सैयदा फरमाती दरिया रहमत जोश में था, हुजूर ने इख्तियार दिया, आयशा जो मांगोगी अता होगा। अर्ज़ की अगर आप मुझे रुख्सत दें तो मैं अपने वालिद गिरामी से मशवरा ले लूँ। आपने फरमाया आप मशवरा कर सकती हैं। आके वालिद गिरामी को सारी बात सुनाई तो आप फरमा दे बेटा हुजूर से अर्ज़ करना खलवत ख़ास में जो राज की बातें हुई थी उसमें एक बात इरशाद फरमाते, साथ वादा लिए बेटा मुझे भी बताना है। आपने आके अर्ज़ किया कि हुजूर मशवरा हो गया तो मांगो क्या मांगती? अर्ज़ की हुजूर क्या बातें हुई थी? तो एक बात इरशाद फरमा दे। तो मेरे नबी फरमा दे आयशा जो कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। तो वालिद गिरामी से वादा किया था, आके बताया तो सही नस्दीक अकबर रोने लगे। अर्ज़ किया अब्बाजान ये तो खुशी की खबर है। फरमाया दूसरा रुख भी देखो बेटा, जो टूटा दिल जोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा और जो कोई किसी का दिल तोड़ बैठे वो तो फिर सीधा जहन्नम में जाएगा। ज़ुबानें जहर उगलती हैं माजरत से, कोबरा सांप से भी ज़्यादा जहरीली हैं। लोग फ़ख्र से हमें लोगों बातें सुनाते हैं, मौलवी साहब 30 साल हो गए भाई से कलाम नहीं किया। मैं कहता हूँ यार कैसे भाई हो यार, 30 साल से भाई से कलाम ही नहीं कर सका? क्या माजी के दरीचों में कभी बचपन और बचपन का वो धुंधला सा नक्शा नहीं याद आया? उंगली थाम के चलना, एक दूसरे के लिए दीवार बन जाना, एक बर्तन में बैठ के खाना खाना, एक बिस्तर में वो अटकेलियां करना, वो प्यार की कहानियां सुनना सुनाना, राज की बातें कहना, वो सरगोशियां, वो कहाँ गई यार सारी बातें? झगड़ा किस बात पे हुआ? 1 इंच दीवार रखने पे। झगड़ा किस बात पे हुआ? बच्चों पे झगड़ा हुआ। तो भाई 30 साल भाई से कलाम ही नहीं कर रहा। वो कहता थूक के नहीं चटता और नाराजगी संभाल के रखी। ये नन्ही कली कल को खेल के बड़ी होगी, शादी नहीं करनी, जरूरत पड़ेगी से मेरी। 20-25 साल इंतजार किया। बेटियां तो सांझी होती हैं यार, लेकिन ये कैसा चचा है, इसने नाराजगी संभाल के रखी। कल को नई रिश्तेदारी जोड़ेगा तो उसको मेरी जरूरत होगी। लोग भी तो सवाल करते हैं इसका चचा क्यों नहीं आया, इसका ताया क्यों नहीं आया? और वो भी नाक बचाने के लिए जाके भाई से माजरत करता। अगर अल्लाह की रजा का मामला होता तो 20 साल नाराजगी ना रहती। और वो इंतजार में है कि इसको जलील करूंगा। जलील करता भी, ठुड्डे भी मारता है, गालियां भी देता है, बरादरी में रुसवा भी करता है। और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, बिस्तरे अलालत पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रहे हैं, सांसें उधार हैं पास,
बच्चों को पास बिठा करके क्या कहा कि मेरे साथ वादा करो, मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें, मैं मर गया तो चचा को जनाजे पे भी नहीं आने देना, धक्के देके निकालना। हम मरते वक्त भी आने वाली नस्लों में नफरत ही छोड़ गए यार, सारी जिंदगी खुद नफरत में गुजारी, आगे नस्लों में भी नफरत मुंतकिल कर दी। और हमने ऐसे भाई भी देखे जिन्होंने अपनी बहनों से ताल्लुक तोड़ लिया। बहन से ताल्लुक क्यों टूटा? एक बात में कि इसने अपना हक क्यों मांगा है। पहली बात तो यह है, मुझे एक साहब ने कहा कि मौलवी साहब बहन तोहफा दे ले लेना जी। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, किताब कपड़ों का जोड़ा नहीं उसके हिस्से की जमीन होती है। पहली बात तो यह बहनें वार देती है भाइयों पे, और दूसरा ये बहनों को ये डर भी होता है अगर मैंने अपना हक मांगा तो भाई बच्चों को नफरत का दर्स देगा, फूफी ने मुंह नहीं लाना, मार गया तो उसको मेरे जनाजे में भी ना। क्या गलत किया उसने? खुद तो एक दीवार पे 1 इंच पे भाई ने भाई को ज़बह कर दिया। आप समझे एक ट्रक हमने जो जहेज दे दी, एक भैंस दे दी, एक फ्रिज दे दी, हक अदा हो गया? क्या उसका सिर्फ इतना ही हक था? और फिर इसके साथ सारी जिंदगी ताल्लुक तोड़ दिया। 6 माह नहीं आती, याद भी नहीं आती, साल बाद छुट्टियां गुजारने आ जाए, हमारे रवैये देख के वापस चली जाती हैं। और यार सूफिया लिखते हैं जो अपनी बहनों के सर पर हाथ रखते हैं अल्लाह उनके रिस्क में कभी भी बेबरकती नहीं आने देता। लेकिन ये कैसा सफाक भाई है, हमने ऐसे भी भाई देखे हैं। देखो गुर्बत अमानत अल्लाह की तरफ से है, अगर आपके पास दौलत ज्यादा तो उसमें आपका क्या कमाल है, ये तो अल्लाह की तकसीम है। अगर बहन को गरीब हो ना, माजरत से कहूंगा ये रवैये हमने देखे हैं, बहन गरीब भाई से रिश्ता लेने जाए तो भाई के तेवर देखने वाले होते हैं, वो कहता तेरी जुर्रत किमें हुई है, औकात देख आप अपनी, मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती, राज़िक हम है। बहनें वली बनाती हैं, बहनें मां का रूप होती हैं, बहनों के भाइयों के लिए हर वक्त हाथ उठे रहते हैं यार। और अपनी बहनों को इज्जत दो यार, अगर नाराजगी होगी तो माफ कर दो यार। और भाई भाई से नाराज तो खुदा के लिए एक दूसरे से माजरत कर लो, क्या नफरत ही लेके कब्र में चले जाने। और हमने ऐसे नालायक बेटे भी देखे हैं जिन्होंने बाकायदा अपने बूढ़े बाप को कहा अब्बा जी तुसी मर गए थे, तुम्हारे जनाजे थे मैं नहीं आवांगा, मैं मर गया तो आप ना आइएगा। मैं उस शख्स को जानता हूं जिसके बूढ़े बाप का लाशा घर में पड़ा है, मोहल्लेदारों ने तरला किया बेटा कोई बात नहीं, जिंदगी जैसी भी गुजरी लेकिन अब तेरा हक बनता है, उसको गुस्ल दे, कफन पहना, उसकी चारपाई को कंधा दे, कब्र में उतार, मट्टी डाल, 2 आंसू बहा, फूल फेंक के आ, ये तेरा हक बनता है। सफाक इतना के सीने में शायद के दिल नहीं पत्थर है। वो कहता वादा किया था अब्बा से, आप मर गए तो मैं नहीं आऊंगा, मैं क्यों जाऊं, बेवफाओं में नाम लिखाऊं। यह है हमारे रवैये। मेराज की शब कुछ लोगों को आग में जलते देखा, शोलों से खेलते देखा, खाक होते हैं फिर जलाया जाता है। हुजूर फरमाते हैं इन्हें ये सजा क्यों दी जा रही है? जबरील ने अर्ज की ये दुनिया में अपने बूढ़े माँ बाप का दिल जलाते थे। हमारे रवैयों से दोस्तों को देखकर बाहें फैलाने वालों, बूढ़े बाप को देख के रास्ता बदलने वालों, बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप तरले करें और हम परवाह ना करें, यार आए कुंडा खड़काए जहां जी चाहे ले जाए, अल्लाह माफ करेगा हमें? दावरे महशर हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। ना नमाजें कबूल होंगी, ना रोजे कबूल होंगे, ना हज कबूल होंगे, और ना ये ज़कातें हमारी कबूल होंगी अगर ये नाराज हुए। मैं टोबा टेक से एक जगह हाजिर हुआ, कुछ दोस्त मेरे पास बैठे, 18-20 साल जवान, सर पे इमामा, सफेद जामा, चेहरे पर दाढ़ी का नूर। दोस्तों ने बताया ये सुबह लोगों को नमाज की दावत देते हैं। मेरे बहुत सारी दुआएं उसके लिए निकली, कुछ लबों पे थी और कुछ आकाने कल्ब में, कि आज का जवान तो चौक चबारों में नजर आता, छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने जवानियां बर्बाद करते दिखाई देते हैं, रक्सो सरूद की महफिलें सजाते हैं। ये कितना सादतमंद, लोगों को सुबह नमाज की दावत, खुद भी सजदा, लोगों को भी सजदे की दावत। तो मेरे साथ एक साहिब बैठे थे, उन्होंने सरगोशी की, वो कहते मौलवी साहब ये बाप का गुस्ताख भी बड़ा है, दस्तार के हर पेश की तस्दीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मोअज़्ज़ज़ नहीं होता, बड़ी बड़ी पगड़ियां मान लेने से इंसान बड़ा नहीं होता दोस्त, इंसान रवैयों से बड़ा होता है। मैंने कहा बेटा ये तो बहुत ज्यादा चरब जुबान। मुझे कहता मुझे बैठाओ मेरे अब्बा को, गलत हुआ तो जूते खाऊंगा। खैर कोई 1-2 बात जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक का सबब बनी। मैंने कहा जा बेटा माजरत करके आ। 20 मिनट बाद वापस आया, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या बना? वो कहता है मैं हाथ बांध के खड़ा हुआ हूं, अब्बा ने मुझे सीने से लगा ली है, आज लगो सीने से, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा। आज सिर्फ एक कोई रंडी रोना, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरना जुल्म, मेरना ज्यादती, बस जहां भी सुना यही सुना।
یہ آپ کے بچے، آپ بھی تو اس کے بچے ہو نا. کتنے خواب دیکھے، خواب دیکھتے دیکھتے یہ بوڑھا ہو گیا، گھر بنایا اور گھر میں باقاعدہ کمرے بھی بنائیے، میرے بڑے کا یہ چھوٹے کا. ماں باپ تو نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں ہمارے بچے ہم سے دور ہو جائیں. اور ماں باپ تو خواہش کرتے ہی ہے نا یار کہ بچے ہمارے ساتھ وقت گزارے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ وقت نہیں گزارنا، ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہنا. یار افہام و تفہیم سے ماں باپ سے بیٹھ کے قائل مائل کر لو. یہ کتنی بری بات کہ آپ نے الگ ہونا ہے، علیحدہ زندگی گزارنی، تو برادری کو بٹھا کر کے بوڑھے ماں باپ کو ذلیل کیا اور ذلیل کر کے الگ ہوئے. خود شہروں میں آگے انہیں دیہاتوں میں چھوڑے، وہ صدقہ خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے. کیسے معاف کرے گا ایسے بیٹے کو اللہ؟ خدا کے لیے یار، خدا نہ کرے پہلی بات تو یہ اس مجمع میں کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہو، بھائی بہن سے ناراض ہو، بیٹا والدین سے ناراض ہو. اگر خدا نہ کرے اس میں کوئی ہو تو میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں. اللہ کے لیے یار اپنے باپ کو منا لو، اپنی اماں کے پاؤں پکڑ لو یار. یہاں کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہے یار، خدا کے لیے یار اپنے بھائی کو معاف کر دو. کوئی دوست دوست سے ناراض ہے یار، معاف کر دو دوست. کوئی بھائی بہن سے ناراض ہے، اللہ کے لیے معاف کر دو یار. نفرتیں کم کرو، محبت کے گیت گاؤ یار. کہاں لے جانی؟ قبروں میں بھی نفرت لے کے جائیں گے. محمد بن حنفیہ بھائی سے ناراض ہوئے نا، سلو کے لیے گئی، راستے میں ہو کے واپس آ گئے، خط لکھا کے بھائی کو، بھائی جان میں آپ سے سلو کے لیے آ رہا تھا، مجھے راستے میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ جنت میں وہ پہلے جائے گا جو سلو میں پہل کرے گا. کہا بھائی جان میری آرزو ہے، آپ بڑے ہو، آرزو یہ ہے کہ جنت میں آپ پہلے جاؤ، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ سلو فرما لیں. آپ سلو فرما لیں گے تو جنت میں بھی آپ مجھ سے پہلے جائیں گے. بھائی جان اپنے اندر درگزر کا پہلو غالب رکھیں. جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو دل توڑ بیٹھے وہ سیدھا. معراج کی شب یہ راز کی بات جو سید عائشہ کے ذریعے ہمارے تک پہنچی. اور آخر پہ عرض کروں گا، امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا آج کی شب. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی، انہوں نے کہا میری امت 3 نہیں پڑھتی تھی. تجربہ تھا امتوں کا، کمی کی درخواست کرے. حضور 9 دفعہ گئے، 5 رہ گئی. پھر کہا تو حضور فرماتے اب اللہ سے حیا آتا ہے. اور امتی نے بڑی ڈٹائی سے کہا ایک چکر لگتا تو جان چھوٹ جاتی. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. امت کو نماز کا تحفہ دیا، ہم نے اس تحفے کی کیا قدر کی؟ ایک گھر میں 8 افراد، سب پہ نماز فرض. کتنے لوگ آتے ہیں نماز کے وقت؟ میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کو شمار کریں تو ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں زندگی میں ہم نے نمازیں پڑھی کتنی ہیں. کسی کے پاس فجر، کسی کے پاس ایک جمعہ، کسی کے پاس ایک عید کی نماز. اور کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے وہ کہتے ہیں جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ ہی نہیں دیکھا. اور ایک اور بات، خواب دیکھنے چاہیے اور خواب بڑے بڑے دیکھنے چاہیے. باقی ترجیحات اپنی ہوتی ہیں. کچھ خواب دولت مند ہونے کا دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ یار ایک بہت بڑا جامعہ ہو، اس میں ہزاروں طلباء پڑھیں اور میں وہاں بیٹھ کے ان بچوں کی خدمت کروں. یہ خواب ہوتے ہیں نا. جس نے جو خواب دیکھا دوڑ لگائی. اللہ کی عادت ہے، اللہ اس کو منزل ضرور دیتا ہے، وہاں تک ضرور پہنچاتا ہے. آپ خواب دیکھتے ہیں نا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، لاکھوں نہیں کروڑوں. یہ خواب دیکھنے کے لیے ہم نے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیے. یہ خواب دیکھنے کے لیے ہم نے پردیس کے دھکے کھائے. میرا اس باپ سے سوال ہے جس نے اپنی اولاد کو دنیا کی ہر نعمت دی، گاڑی بھی دی، بنگلہ بھی دیا، لاکھوں نہیں کروڑوں پیچھے بھی چھوڑا. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے اتنا کچھ آپ نے اپنی اولاد کو دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ دو، بڑا گھر دو، سعادت مندی کی نشانی ہے. سواری دو، سواری بھی سعادت مندی کی نشانی ہے. بھائی جان دنیا کی ہر نعمت دی آپ نے اپنی اولاد کو. میرا ایک سوال ہے، آپ نے اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ اتنا کچھ دیا تو مصلی کیوں نہیں دیا یار؟ سجدے کیوں نہیں دیے؟ ایک گھر میں 8 افراد، سب پہ نماز فرض. کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ 2 کنال میں مسجد، 10 نمازی نہیں ملتے. میں شکرگڑھ بالکل باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا، نماز کا وقت تھا، اذان پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا. اقبال اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے. کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے؟ اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی.
मस्जिद मरसिया हाँ के नमाजी न रहे, यानी साहिब ओसाफ वो हिजाजी न रहे। वीरान है अल्लाह के घर यार, उजड़े हुए हैं अल्लाह के घर। कितने लोग आते हैं मस्जिद में, आज तो परवाह नहीं ना करता। हम कहते हैं कि मौलवी साहब कपड़े ही नहीं पाक, किसी को दावत दे ना नमाज की, वो कहता कपड़े नहीं, कपड़ों की कहानी नहीं, मन गंदे हैं। मन सुथरे होते भाई, पेवंद लगे कपड़े अल्लाह के हुजूर झुका देते। कुछ लोग डटाए, वो कहते साढ़े सदी भी पड़ा है, जिसे कोई बात ना आए वो ये बात जरूर कर, मौलवी बख्शे गए तसी भी बख्शे जाएंगे। भाई जान, हमने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपना हिसाब देना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। अंधे के हाथ में चिराग हो, चिराग का काम रास्ता दिखाना है, अंधा इस्तेफादा नहीं करता, ना करे आप कर लो। सादी कहते नसीहत दीवार पे लिखी, बात अच्छी है वो कबूल नहीं करती, ना करे आप कर लो। मौलवी कहां से आ गए, पीर कहां से आ गए। फिर हमने ऐसे भी लोग देखे बड़े दिलेर, वो कहते मौलवी साहब डुबकी लगेगी जान छूट जाएगी, इतना लंबा चौड़ा तो मामला ही नहीं होगा। भाईजान, रावी में डुबकी लगनी है, दरिया शराब में डुबकी लगनी है, और नई आग का दरिया है। और डुबकी क्या है, यहां से डुबकी लगाएंगे दूसरे किनारे निकल आएंगे। सुनो, हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा, धमाके की आवाज आई, फरमाया साहबा जान तो ये आवाज कैसी, अर्ज की अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। रहनुमाई फरमाए, फरमाया 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया था, आज गहराई में पहुंचा है। एक डुबकी कितने साल की, 140 साल की डुबकी है। क्या ये दुनिया की आग तो बेवफा है, जला के खाक करती है, जान छोड़ती है। लेकिन जहन्नम की आग तार कूल की तरह, लुक की तरह होगी, जो जिस्मों के साथ ही चश्मा होगी, वो तो जान भी नहीं छोड़ेगी। जहन्नमी को अगर जहन्नम की आग से निकाल के दुनिया की आग में डाल दिया जाएगा, फरमाया चैन की नींद सो जाए। जलते चिराग पे एक जवान हाथ बढ़ाता है, हुस्न सच के सामने खड़ा है, दावते गुनाह दे रहा है। जब उसकी तमाजत हथेली तक आई, खींच लिया, आवाज दे के उसे कहा कि इस आग को नहीं सह सकता, उस आग का मुकाबला कैसे करूंगा, खुद भी बच और मुझे भी बचा। चिट्टी चादर फुमना वाली, दाग ना लामी जनिया, हशर दिहाड़े फिर राखी हाल रब्बा की बनिया। वो एक बुढ़िया ना बच्चों की शिकायत लेके आ गई है कल्ला वाले के, ये नमाज नहीं पढ़ते, कोई तवीज दे दो, कोई दम कर दो। आप फरमाते मेरा सवाल है, अचानक उस कमरे में, जिस कमरे में तेरे बच्चे होते बहन, आग लग जाए क्या करोगी। ममता तड़पेगी, खींच के बाहर ले आऊंगी। तो आप फरमाते हैं बहन, जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा सख्त है। जहन्नमी को जो सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा ना, उसके पांव में आग के जूते होंगे, उसका दिमाग पिघल कर नाक और कानों के रास्ते बाहर आ जाएगा। ये हल्का अजाब है। हमने कहा डुबकी लगेगी जान छूट जाएगी, मौलवी बख्शेगी, हम भी बख्शे जाएंगे, कपड़े पाक नहीं, मेरे हिस्से की भी पढ़ाया। क़यामत का दिन अल्लाह फरमाएगा मुझे सजदा करो, क्या उस दिन कोई इनकार करेगा? बताइएगा। उस दिन तो बेनमाजी भी चाहेगा, सारी जिंदगी नहीं अल्लाह की मानी, चलो आज ही सजदा कर लूं, लेकिन भाईजान उस दिन बावजूद चाहने के सजदा नहीं होगा। कमरे यूं अकड़ जाएंगे, बेनमाजी कहां खड़ा होगा? कारून, हामान, अबी बिन खल्फ। आप जानते ये कौन लोग हैं? ये अल्लाह रसूल के दुश्मन है। जिस सफ में अल्लाह रसूल के दुश्मन खड़े होंगे, उसी सफ में बेनमाजी को खड़ा किया जाएगा। एहसास की बात है। वो सागिर ने कहा था कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है। हम लोग आज भी अंधेरों में खड़े हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन एक जगह बयान के लिए गया, नमाज का टाइम था, हम सफों में खड़े थे, पहली सफ में, तो हमारे साथ एक जात का मुसल्ली खड़ा हो गया। चौधरी साहब को ना अच्छा लगा, उन्होंने खींच के पिछली सफ में कर दिया और आवाज की थी तेरे नाल तो मेरी नमाज भी नहीं होती। कमी के साथ खड़ा होना हम लोग तौहीन जानते हैं, जो अल्लाह रसूल के दुश्मन होंगे उनके साथ खड़ा होना एजाज की बात होगी। आज सजदा नहीं करेंगे तो दावरे महशर के सामने रुस्वा होना पड़ेगा। एक खातून हुजूर की खिदमत गुफ्तगू समेट लेते हैं। एक खातून बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई, उसके गुनाह बड़े थे, अर्ज करती आका पाक कीजिए। गुनाह का इजहार भी कर दिया कि शादीशुदा हूँ, शोहर दियारे गैर गया तो नफ्स पे काबू न रख सकी, जिना हो गया, हामिला हुई, बच्चा हुआ, मैंने ज़बा कर दिया मारे गैरत के, मेरे पास सिरके का मर्तबान था, उसमें उसको फेंक दिया, गंदा सिरका बेचती रही। 3 गुनाहों का इजहार किया। फिर मेरे नबी 3 गुनाहों की सजा बयान करते हैं। तू शादीशुदा है, तुझे रजम किया जाएगा। तूने एक इंसान को कत्ल किया, तुझे कत्ल किया जाएगा। तीसरा फरमाया तूने गंदा सिरका बेचा, अल्लाह से माजरत कर, ये गुनाह कबीरा है। 3 गुनाहों की सजा बयान करने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं तू जिस दर्द से रोती हुई मेरी खिदमत में आई, मैं मोहम्मद तो समझा शायद कि तेरी नमाज असर कज़ा हो गई हो, शायद कि तेरी नमाज असर कज़ा हो गई हो। सिरी शक्ति का जवान बेटा दुनिया से चला गया, दौरान तदफीन नमाज असर कज़ा हो।
सारा शहर अफसोस के लिए आया, सिर्री सकती रोने लगे। आप फरमाते बेटा चला गया, सारे शहर ने अफसोस किया। मेरी नमाज़े असर चली गई, किसी ने भी अफसोस नहीं किया। क्या हमें कभी अफसोस हुआ कि यार आज 5 नमाजों में एक नमाज रह गई? मैंने अर्ज किया उंगलियों के पोरों पे हमारे पास नमाजें हैं, अल्लाह के घर वीरान हैं, उजड़े हुए हैं। आज की शब उम्मत के लिए मेरे नबी नमाज का तोहफा लाए। आइए भाई, आज की शब में और आप वादा करें कि आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह से वादा करना है। और मेरे किबला वैसे कभी किसी बात पे इतना जोर तो नहीं देते, जब कभी नमाज पे बात आए तो एक बात जरूर करते हैं। आप फरमाते इतनी जोर से कहो कि शैतान का भी कलेजा फट जाए, आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और एक वादा ये भी है भाई, जो हमसे बिछड़ गए यार, जो दिल के जानी थे, जो हमारे महबूब रिश्ते थे, भाईजान उनसे भी माजरत ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।